Okay, so ले while लिया पिक्चर। हाँ ले लिया, चलो let's start. So, hi my powerful soul. Today, today's blueprint is not about controlling our emotions. We are working on our emotions, but it's about mastering our inner world and so deeply that nothing outside can shake our peace, our power, and our path. कहते हैं ना कि जब तक इमोशंस तुम्हारे मास्टर हैं, तुम उनके गुलाम हो। जब तुम इमोशंस के मास्टर बन जाते हो, तो तुम क्रिएटर बन जाते हो। We all been conditioned to believe that emotions happen to us. But what if I told you that you are an author of every emotional script playing inside you? Emotional mastery is not suppression. It's actually a transformation. It's how you go from reaction to creation. Especially for us as Indian women. बाकी सब अपना माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज. Okay. Especially for us as Indian women, we are always taught to adjust and hold back. Emotional suppression has almost become our second nature. हमको यही सिखाया जाता है कि ज्यादा बोलो मत, थोड़ा झगड़ा कम करो, घर में शांति रखो. But now, as we rise, we don't become rebel, but we have to be conscious in our response. We have to express. We will not suppress our emotions. If you see that sometimes women don't speak their heart out, हम अपनी बात नहीं बताते, and that results into so many blockages in our body. It damages our throat chakra, and that's very terrible. Have you ever noticed that most of the thyroid issues are in women only? Because we don't express. हम बात ही नहीं करते अपने इश्यू के बारे में. Okay, so today I want you to acknowledge this sacred space, that even if you are not able to speak outside, you are able to speak here. We will open our heart. We will let our emotions flow. Okay, the best exercise you can do is write everything, whatever in here, on the piece of paper. Let it out. Let it flow. Express your emotions any way you can. If you are angry, buy a punching bag and punch on it. हम अपने हस्बैंड पे गुस्सा नहीं निकाल सकते, अपनी सास पे नहीं निकाल सकते, बट यू हैव टू एक्सप्रेस इट समवेयर. किसी से बात नहीं कर सकते, पेपर पे लिखो. किसी को पढ़ने नहीं देना चाहते, बर्न इट. बट डू ऑल दिस थिंग्स. ओके, नाउ आई वांट यू टू understand this one thing, that how emotions are getting formed. Emotions are our beliefs. The core of any emotion is our belief. Our beliefs create thoughts. Thoughts creates emotions. Then what happens? We take actions accordingly. Then the outcome happens. And slowly, that becomes our identity. जो आप अपने दिमाग में बिलीफ सिस्टम बिठा के रखते हो कि नहीं, मेरे से तो नहीं बोला जाता, मैं तो नहीं बोल पाती हूँ, क्या होएगा उससे? आप कॉन्स्टेंटली वो ही सोच रहे हो, सैड हो रहे हो,
खुद को ये प्रॉम्प्ट दे रहे हो कि नहीं, मेरे से नहीं बोला जाता, नेक्स्ट सिचुएशन आएगी आप कोई एक्शन नहीं ले पाओगे, कुछ बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि वो आपने अपने अंदर फीड कर लिया. You will not be able to express. And then slowly, that's your identity that you can't express, you don't speak. So, first thing you need to do is change your belief system. And belief is just a thought you keep thinking. It's a very well said line by Abraham Hicks. उन्होंने बोला है कि जो चीज आप repeatedly सोचते रहते हो, that forms a belief in your head. And that's what you become. Okay, so first we need to change our belief. Everything you are feeling today, no matter what it is, fear, guilt, love, power, it all comes from what you believe. What you believe is true, like whatever about your life, for yourself, for others, whatever you start to believe, start to happen in your reality. If you believe I'm not good enough, your thoughts constantly echo it. You feel small. You always act with hesitation. And you attract relationships also that reflect that doubt. Okay? But here is the good news. Beliefs are not permanent. They are only patterns. And patterns can be recoded. They can be changed. And emotions are actually our energetic indicators. They tell us whether we are aligned with our highest self or not. Are we stuck in some kind of programming? Okay, तो इमोशंस को एक प्रॉब्लम की तरह नहीं लेते हैं. लेट्स टेक इट एज इंडिकेटर कि जब तुम कुछ फील कर रहे हो, थोड़ा सिचुएशन से दूर हटो, उसको देखो. व्हाट इज इट दैट आई एम फीलिंग? क्या फील हो रहा है? मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों? एज अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्व योर इमोशंस. वो कुछ बताता है आपको कि दिस इज व्हाट इट इज. ओके, तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इट विल बी इजी. आई विल गिव यू मैनी एक्टिविटीज दैट यू कैन डू. ओके, सो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि जब तुमको गुस्सा आ रहा है, दैट एक्चुअली इज नॉट एंगर, दैट इज योर सप्रेस्ड वॉइस. जो चीजें आपने जब छोटी थी तब बोल देनी चाहिए थी, तब आपने नहीं बोली, नाउ इट्स अ वेरी बिग डील दैट यू कांट इवन हैंडल इट. जब तुमको तुम्हारे छोटे छोटे डिसीजंस खुद से लेने चाहिए थे, किसी से परमिशन नहीं मांगनी चाहिए थी, देन यू नेवर क्रिएटेड अ बाउंड्री. लोग आते गए, अपना काम आपको देते गए, आप करते गए, अब उनको भी आदत हो चुकी है. वो आते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि दैट यू आर ऑलवेज फ्री, यू विल डू एवरीथिंग. ओके, सो दिस इज ऑल थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न. ओके, now now we're going to learn how we can track our beliefs and how we can modify our emotional outcomes. Now, I want you to do a small exercise. I hope everyone is here with a pen and paper. I want you to write, what emotion do I feel repeatedly that limits me? वो कौन सा इमोशन है जो मैं ऑन द लूप या रिपीटेडली फील करती हूँ, जो मुझे लिमिट करता है? एग्जाम्पल, आप फियर फील करते हो, किसी किसी को गिल्ट है, कोई हमेशा गुस्से में ही रहता है, किसी को जेलेसी बहुत होती है, कोई बहुत ओवरवेल्म फील करता है. लेट्स से फॉर मी, गिल्ट इज माय मेजर इमोशन, बिकॉज whenever I have to sit to perform anything, to give a lecture, the first thought in my mind is that मेरी बच्ची को मैं वो टाइम नहीं दे पा रही. As a mother, I somewhat feel that I failed. I've let down myself. I let down my daughter. So, in my life, my major emotion where I feel stuck is guilt.
Okay. So now I want you to write down what is your emotion that you continuously doing, repeatedly doing, and that is limiting you. One emotion. Okay. Okay. Manjusha says fear. सब अपना माइक बंद कर दीजिए प्लीज. Sharon, thank you. Okay. ठीक है. Now let's see कि इमोशंस आते कहाँ से हैं. ओके. ट्रैक कैसे करें. Most beliefs are planted in us in our early life. Most of them. Through our family, through our society, from our heartbreaks, from our traumas. Especially in our initial years, हमने जो देखा, जो सुना, that all somewhat stayed in our subconscious mind. उसने घर कर लिया है हमारे दिमाग में. And now that is difficult because we have lived so many years with all these beliefs. But you know what the amazing thing is? When we brought it to the light, जब हमने उसको एक बार acknowledge करा, तो it loses its power. जब तुमको पता है कि तुमको क्यों डर लगता है, क्योंकि तुमको बचपन में सबने बोला है कि ऐसे मत करो, गिर जाओगे. शादी ऐसी होती है. मदर इन लॉ ऐसे होता है. You entered a marriage with a preconceived notion. तुम स्कूल गए ये सोच के कि दूसरे बच्चे मारेंगे तुमको. तुम घर से बाहर निकल रहे हो यही सोच के कि दुनिया अच्छी नहीं है. So you are attracting everything that you are thinking is true. Your belief systems तुमको वो ही सब दे रहे हैं जिससे शायद तुम भाग रहे हो. So the magical thing is कि जो चीज तुमको एक बार समझ में आ जाती है उस पे तुम्हारा कंट्रोल भी बन जाता है. जब तक तुमको पता नहीं कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है तुम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते. बट व्हेन वी बिकम अवेयर वी बिगिन टू कंट्रोल इट. एज दे से अवेयरनेस इज द फर्स्ट स्टेप. सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हमें पता हो कि हमारा प्रीडोमिनेंट ऐसा कौन सा इमोशन है जो हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं. ओके. नाउ वी गोना लर्न अ रेजिस्टेंस वेब. एवरीवन नोज व्हाट रेजिस्टेंस इज. आप बताइए मुझे चैट में आपको क्या लगता है रेजिस्टेंस क्या होता है. एनीवन. Ignoring. Okay. Not to take action. Okay. What I call is मेरे लिए रेजिस्टेंस क्या है. इट्स अ साइलेंट इमोशनल वायरस that blocks our progress. It's a very silent emotional virus that blocks our progress. First resistance, which is very common, is procrastination. Fear of failure or not being perfect. That's called procrastination. हम सोचते रहते हैं आज परफेक्ट नहीं है, आज नहीं करूंगी, कल करूंगी. लेट मी प्रिपेयर बेटर. आज अच्छा दिन नहीं है, आज मुहूर्त अच्छा नहीं है. इतनी प्रिपरेशन में करूंगी तो पक्का फेल होंगी. दैट इज प्रोकास्टिनेशन. ओके. हाउ टू शिफ्ट इट. फोकस ऑन स्मॉल स्मॉल थिंग्स.
छोटी छोटी चीजों पे काम करो, सब एक साथ लेके मत बैठो कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। स्टार्ट विथ वन स्मॉल थिंग। सुबह उठ के शुरुआत वहां से करो कि गर्म पानी पीना है। पूरा दिन का डाइट बनाने मत बैठो। वजन कम करना है, उठो, सबसे पहले सुबह गर्म पानी पियो। टिक मार्क दैट वन थिंग ओनली, and later on your all actions will be aligned according to it. जब तुम एक्शन करते हो, then you don't have to wait for motivation. Start messy, but start. Okay, that will help you to deal with procrastination. Clarity comes from movement. When you start taking even small action, it changes something in you. And that's my personal experience. बैठे बैठे 500 बड़े बड़े प्लान बना लो, कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा उससे। बट वेन यू स्टार्ट डूइंग स्मॉल एक्शन, उससे जितनी क्लैरिटी आपको उससे मिलेगी, वो कितना भी सोच लो उससे नहीं मिलेगी। ओके, सो द फर्स्ट थिंग यू कैन डू to remove procrastination from your life is you start taking small actions. Second resistance that we have is our neediness. Neediness means lack of self worth. हमें लगता है कि हमको कॉन्स्टेंटली किसी ना किसी की जरूरत है। हमें लगता है कि अगर किसी की हेल्प नहीं मिली तो शायद हम कुछ नहीं कर पाएंगे, या फिर डिपेंडिंग ऑन जस्ट वन पर्सन। हमें ये समझना पड़ेगा कि जो चीजें हमें बाहर से चाहिए वो सारी हमारे अंदर हैं। अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल दैट आई गिव इज, जब एक एग है ना, एग जब अंदर से टूटेगा तो उसमें से लाइफ निकलेगी। चूजा निकलता है जो, एग जब अंदर से टूटता है देन इट क्रिएट्स लाइफ। जब आप उसको बाहर से तोड़ते हो देन इट्स ओनली गुड टू मेक एन ऑमलेट। उससे सिर्फ ऑमलेट ही बनेगा, उसमें से लाइफ नहीं निकलेगी। तो जब तक आपको बाहर के लोगों की जरूरत है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, देन यू आर इन अ नीडी स्टेट। वहां से कोई चीज का सॉल्यूशन आपको परमानेंटली नहीं मिलेगा, क्योंकि आज आपको ये बंदा चाहिए, कल आपको दूसरा चाहिए होगा, परसों आपको तीसरा चाहिए होगा। जरूरतें ना कभी खत्म होनी। सो एटलीस्ट फॉर योर लाइफ यू हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट। स्टार्ट विथ योर सेल्फ। तुमको जो करना है, तुम जो करना चाहते हो, उसके लिए तुम सफिशिएंट हो। प्यार दुनिया से मत मांगो, दो खुद को। सबसे पहले अपने बारे में सोचो, अपना कप फिल करो, देन डू एनीथिंग एल्स फॉर अदर पीपल। क्योंकि जब आप अपने लिए जीते हो, अपने लिए सब कुछ करते हो, देन योर कप इज फुल, एंड व्हेन यू आर ओवरफ्लोइंग देन यू हैव एनीथिंग टू गिव अदर्स। और हम क्या करते हैं, हम वी डू ऑपोजिट। हम पहले बाकी सबका सब कर लेते हैं, देन एट द एंड वॉट एवर टाइम इज लेफ्ट दैट इज फॉर आवर सेल्फ। पूरा दिन चिक चिक पिच पिच, घर के काम, ये काम वो काम, रात को बच्चों को सुलाने के बाद वी डू स्क्रोलिंग इन द मोबाइल एंड वी थिंक कि ये मेरे लिए मेरा काम है। हमको लगता है कि वो मैंने अपने लिए अपना टाइम निकाला है, थोड़ी देर यूट्यूब में कुछ देख लिया। नो, स्टार्ट योर डे फॉर योर सेल्फ। सुबह सुबह अपने लिए सबसे पहले टाइम ले लो। किसी के लिए भी कुछ भी करने से पहले अपने बारे में सोचो, देन ओनली यू कैन लव योर सेल्फ। तभी तुमको दूसरों की जरूरत नहीं होगी। ओके, सो हाउ वी कैन शिफ्ट अवर नीडीनेस? Fill your own cup first. What you seek from others, give it to yourself. Okay? Third resistance, which is very common, is judgment. It is called a comparison trap. When you judge constantly others, you are also living in a fear that people are also going to judge you. हम ये नहीं समझते कि
सबकी टाइमलाइन ना अलग अलग है। एक बच्चा है जो शायद कुछ सीख रहा है, जिसने 15-16 साल की उम्र में सीख लिया। आजकल तो बच्चे 3-3 महीने के होते हैं तब स्विमिंग सीख जाते हैं। पर कोई 60 इयर्स का है, उसको स्विमिंग नहीं आती। पर उसको वो सारी बहुत चीजें आती है जो शायद ये बच्चा अपनी लाइफ में कभी नहीं सीखेगा। तो व्हेन यू कंपेयर एंड यू पास ऑन योर जजमेंट्स ऑन अदर पीपल, यू आर एक्चुअली ब्लॉकिंग योर एनर्जी। आप वो रास्ते बंद कर देते हो जिससे गुडनेस, जिससे एनर्जी, जिससे लाइफ फ्लो आपकी तरफ आ रहा है। क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली कंपेयर कर रहे हो। अगर हम सबको एक ही जैसा बनना था तो क्यों है हम इतने सारे लोग? यू आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग somebody else's mother-in-law to your mother-in-law, somebody else's husband to your husband. आजकल एक बहुत, आई एम नॉट टॉकिंग के चलो ये गलत ही होएगा, बट देर इज अ टर्म कॉल्ड नार्सिसिस्ट. Everyone is labeling their partner narcissist, and they are not understanding that it's actually a medical term. बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं जो उसमें फिट इन होने होते हैं टू कॉल योर पार्टनर नार्सिसिस्ट. बट हम क्या करते हैं, पार्टनर ने एक बारी कुछ गलती करी एंड ही रिपीटेड, एंड वी सेड सी दिस पर्सन इज नार्सिसिस्ट. तुमको इंस्टाग्राम दिखाता है कि देखो देखो तुम्हारे पार्टनर ने ये किया है ना, दिस इज व्हाट इट इज. बट वी डोंट अंडरस्टैंड दैट दैट इज एन एल्गोरिदम. वो तुमको जो दिखा रहा है, तुम्हारे पार्टनर को वही दिखा रहा है. तुमको वो दिखा रहा है कि दिस इज व्हाट योर पार्टनर इज. तुम्हारे पार्टनर को कुछ और दिख रहा है कि ये तुम्हारी वाइफ ने ये करा, तो दिस इज व्हाट इट इज. तो हम लोगों पे, चीजों पे लेबल लगाते जाते हैं. सो वी हैव टू टोटली एक सरेंडर की जगह पे आप आके खड़े हो जाओ एंड डिसाइड कर लो कि आज के बाद बिना वजह किसी को जजमेंट पास नहीं करेंगे, किसी भी दो जने को कंपेयर नहीं करेंगे. जो मेरा बंदा है वो मेरा बंदा है, मेरी बंदी है वो मेरी बंदी है, मुझे मिली है और ये जैसी है वैसी मेरे लिए परफेक्ट है. मेरी जिंदगी में वो ही लिखी थी. पसंद तो लड़कों को ऐश्वर्या राय होती है, सबकी जिंदगी में नहीं पड़ी है ना वो अभिषेक के हिस्से ही आई है. आपके हिस्से में वो है जो आपके लिए सही था, जिस जगह पे आप थे, जो एक्सपीरियंस आपको अपनी लाइफ में करने थे. एंड आई एम नॉट सेइंग कि दैट तुम्हारी जिंदगी में अगर कुछ गलत हुआ तो किसी की उसमें कोई गलती नहीं थी. बट अंडरस्टैंड दैट यू ऑल्सो हैड टू लर्न सर्टन लेसन्स इन योर लाइफ. जरूरी है वो सारे लोग तुम्हारी लाइफ में होने जो आज तुम्हारी लाइफ में हैं या थे. यू हैड टू लर्न दोज लेसन्स. ओके. So your only competition should be your own past self. तुमको सिर्फ अपने आप से बेहतर बनना है. तुम जो कल थे वो तुम कल नहीं होगे. बस उतना बेहतर बनो. ओके. सो judgment is a comparison trap. We will always remember it. Next, addiction. Addiction is actually a distraction. It's an emotional escape. We think having 3 cups of coffee is healthy for me. इससे मेरा दिमाग चलता रहता है, मैं काम ठीक से कर पाती हूँ. या फिर जब घर में झगड़ा हो जाता है तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड टॉकिंग टू अ हस्बैंड, हम फोन लेके बैठ जाते हैं, हमको बात ही नहीं करनी. या बॉयज हैव दिस वेरी बैड हैबिट कि घर में तुम्हारा झगड़ा हो गया, मेजोरिटी, सी आई एम नॉट जनरलाइजिंग, बट मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर सीन के घर में झगड़ा हो गया, वाइफ इज क्राइंग एंड व्हाट द हस्बैंड डज, वो बाहर चले जाते हैं. दे एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन. इट्स कॉल्ड इमोशनल एस्केप. You don't want to deal with your whatever the emotion, whatever the trauma is, so you take a help of any addiction. It could be drinking, it could be smoking. When you don't process your emotions, addiction happens. तुमको समझना पड़ेगा कि जो चीज शायद बात करने से ठीक हो सकती थी, तुमने वो नहीं करी, एंड नाउ यू आर एडिक्टेड टू स्मोकिंग.
which is also spoiling your relationships, spoiling your health. So when you process your emotions, there is a very less space for addiction in your life. जब भी जिंदगी में तुमको कोई एडिक्शन है, पेन एंड पेपर लेके बैठो, पूछो खुद से, व्हाट एम आई रनिंग फ्रॉम? ऐसी कौन सी चीज है जिससे मैं भाग रहा हूं या भाग रही हूं? एंड सी, उसमें कोई शर्म नहीं है. फेस इट विथ लव. When you accept it once, no, then it becomes very easy to change it. And we are all human here. सबको कोई ना कोई एडिक्शन है. किसी को एडिक्शन है कि वो दुखी है तो दुखी ही रहेगा. उनको उस चीज से बाहर ही नहीं आना. दुखी होने का एडिक्शन है. Okay, so whenever you're feeling that you are just trying to distract yourself, or you're falling into a trap of some kind of addiction, पूछो खुद से that what am I running away from? Okay, now next is victimhood. Victimhood is giving away your power. हम बोलते हैं कि मैंने तो देखो इसके साथ ये अच्छा किया, पर मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता. We always want to stay in victimhood only. अगर कुछ ठीक हो भी रहा है ना, वो इसीलिए नहीं होगा that you have made this belief such a strong belief that you stay in that energy. You have to understand that whatever is happening in your life is somewhat a result of your past karma or your limiting beliefs. So when you stop complaining, you become a creator of your life. Instead of being a complainer, when you become a creator, you get out of the victimhood. बहुत इजी होता है सबको ये करना, पॉइंट आउट करना, ये मेरे लिए वो नहीं कर रहा, फलाना मेरे लिए ये नहीं करा. तुमने अपने लिए क्या करा? तुम तो अपने लिए बोले भी नहीं. सो स्टॉप ब्लेमिंग. अपनी जिंदगी अपने हाथ में ले लो. सिर्फ अपना एटलीस्ट बेहतर करो. किसी को ब्लेम मत करो. अकेले आए थे, अकेला ही जाना है तुमको. साथ में ना कोई आया था ना कोई जाएगा. तो वाई टू स्टे इन विक्टिमहुड? जो यहाँ का है वो यहीं रहने वाला है. Okay, and the last point is depression. It's an emptiness, disconnection from your soul. जब हम यहां से अलग हो जाते हैं ना, अंदर से, तो everything feels empty. अपने पर्पस से रिकनेक्ट करो. एक कम्युनिटी बनाओ अपने आसपास. खुद को एक्सप्रेस करो. जो पसंद है करो. दिन में एक बार ही घर से बाहर निकलो. घास में चलो. घर में रहते हो, प्लांट्स लगाओ. अपने आसपास एनर्जी का फ्लो बढ़ाओ. जब आप उस एनर्जी में आते हो ना, जब एनर्जी मोशन में आती है, तो इमोशंस ऑटोमेटिकली चेंज होते हैं. राइट? आई होप आई एम क्लियर. राइट? सो ओके, नाउ इन next lecture we'll do some exercises and I'll teach you how you can easily rewire your mind. I'll also teach you some meditations that we can do. Okay, so I hope you'll all attend the next lecture. Okay, and for today I want to give you one affirmation that you going to practice, that I am the creator of my emotion and not a victim of them. मैं शक्ति हूं. मैं क्रिएटर हूं. मैं अपनी लाइफ की रियलिटी खुद लिखूंगी. इन इंग्लिश, आई एम पावर. आई एम द क्रिएटर. I am writing my own reality. Okay, so the homework for today will be you're gonna practice this affirmation, and नहीं practice कर सकते 10 बार ही लिखो.
और कोई भी एक इमोशन को पकड़ो और उसको ट्रैक करो और देखो कि उसके पीछे तुम्हारा क्या बिलीफ सिस्टम है। ओके, एंड देन जो तुम्हारा बुरा बिलीफ सिस्टम है उसका ऑपोजिट तुम्हारा अफर्मेशन होगा, उसे भी लिखो। ओके, और जब हम धीरे धीरे काम करते जाएंगे तो हमारे कोर इमोशंस धीरे धीरे चेंज होंगे, जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में सीखेंगे। ओके, ओके, सो लेट्स एंड अप हियर।